आद सिटान ते भिन्न नहीं, जगत नविरति बखान। सर्प नमिरति रज्जु जमा, पयो रज्जु को ज्ञान। ज्ञान दी महिमा दो ही चीजां हन, एक प्रतीति का विषय, एक सत्ता का स्वरूप है। जेड़ा प्रतीति का विषय वो है ही नहीं, जेड़ा सत्ता का स्वरूप है वो त्रैकाल आबाद है, सदा रहने वाला। इस नूं नानक जी ने अथवा साडे संतां ने एक आख्या भी दो कुछ नहीं गा। जेड़ा अज्ञान है ये अनिर्वचनी है, जनी बचन दे विच हाम नहीं कह सकते ते नाम नहीं कह सकते। जिन्हों हाँ ना तो दोना तो रहत होवे तो उस चीज नूं यही कहा जाता है ही नहीं। ये जिहड़ी है ही नहीं चीज है ये है अज्ञान। ते अज्ञान तो अगला जितना महाभूत प्रकृति विकृति कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां अथवा हिरणगर्भ विराट विश्व तेजस पराग, ये जेड़े इन्ने प्रकार दे प्रतीत हुंदे है इन्हां दा स्वरूप है जिन्हों नानक जी कहंदे एक। ये इन्ने नहीं गे, ये एक है। ये इन्नियां दे नाना प्रकार दी प्रतीति जो सानू मालम पड़दी, असी इस मालम पड़दी प्रतीति नू एक दूजे नाल विचारां दा आदान प्रदान करके कहण कहाउण करदे हैं। वो कहण कहाउण जिहड़ा इहनूं बोलिया गया विधि और निषेध। जिहड़ी चीज विधि और निषेध च आवे, विधि निषेध दा माना यह हुंदा है कि एक है ही नहीं। अगर प्रतीति हुंदी है ही नहीं भी, जिहड़ी ना हुंदियां भी प्रतीति ही हुंदी है, ओहदा नाम है कि एक चंगी लगदी है एक माड़ी लगदी है। वैसे है ही नहीं, ना हुंदे चों जो मालूम पड़ता है वो एक चंगा लगदा है एक अच्छा नहीं लगता। जिहड़ा चंगा लगदा ओहदा नाम विधि, जिहड़ा अच्छा नहीं लगदा ओहदा नाम निषेध। ये विधि निषेध की प्रक्रिया जितनी है, जिहड़ा कोई संत ज्ञानी पुरुष गुरु कोई भी विचार देण वाला ये बताउंदा है भी ये भाई चीज माड़ी है, ये चीज चंगी है, इस नूं खाना चाहिए, इस चीज नूं खाना नहीं चाहिए, इस नूं पहनना चाहिए, ऐसा पहरावा नहीं चाहिए। इथों तक ये असी ले लो भी ये सारा विधि निषेध है, धर्म विधि निषेध आदा है। जैसे सिख पंथ का धर्म है, ये कहता है कि कोई नशा
ਪਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਧਾਰਨ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਵਿਧੀ ਨਿਸ਼ੇਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਧਰਮੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਣ ਪਾਣ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੇ ਮਸੀਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ੇਧ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਵਿਧੀ ਨਿਸ਼ੇਧ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਤੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕਿਸ ਕੋਟੀ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜੋ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਘ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਦਰਾਸ ਗਏ ਹੈ, ਨਾ ਕਲਕੱਤਾ ਗਏ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਬੰਬੇ ਗਏ ਹੈ ਇਤਿਹਾਦਕ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੀਆਂ, ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਫੱਬਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧੀ ਨਿਸ਼ੇਧ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਜੀਵ ਕੋਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਆਚਾਰੀਆ ਕੋਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕੋਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀਵ ਕੋਟੀ में ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੀਵ ਕੋਟੀ में ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਮਾਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧੀ ਨਿਸ਼ੇਧ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵ ਸਰੂਪ में ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੀ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ। ਉਸ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਨਿਸ਼ੇਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਅਖੇ ਵਿਧि निषेध जो कर्म है तांको करता जोए सो करता जानो सही जीव कहावे सोए। ते काम ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਧि ਨਿਸ਼ੇਧ ਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਉੱਚੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧि ਨਿਸ਼ੇਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਪੋਥੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤत्व ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਕੋਟੀ में क्यों बैठे हो? ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਤ ਜੀਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ विधि निषेध जो कर्म तांको करता जोए सो करता जानो सही जीव कहावे सोए। ये गल उन्हां दी बहुत अमुल है। पर नाले वेखना है कि वो खुद विधि निषेध करते है कि नहीं, तो फिर जीव कोटि में तो शिव सेव कदों होंगे? ऐसा हालात में कोई भी आएगा, इस अवस्था में कोई भी आएगा कि जदों तुसी सभी लोग पंछी पशु मक्खी मच्छर किरम और मानव दानव ये सुखोक्ति सौण दी निंद्रा दी अवस्था में है, तो इन्हां चों कोई भी कर्म नहीं करता। ना विधि कर्म है ना निषेध है। तुसी अपने अपने विज्ञान नूं फेर सिमरन करो कि जदों तुसी सौने हैं कोई काम करदे हैं निषेध दा? कोई नहीं। अच्छा कोई काम करदे हैं ग्रहण दा? ज्ञानी दी हालात, ज्ञानी दी अवस्था, ज्ञानी दी स्थिरता होनी चाहिए। जीव ये जेड़ा जीव कोटि में मनी बैठा है, तो जीव शास्त्र ने संतां ने ज्ञानी तत्व ने क्या अखे जीव सीव सौ सुख पायो। ज्ञानी पुरुष नूं ये जगत ऐ मालूम पड़ना चाहिए जिवें सुते हुए पुरुष की हालात है। जीव सीव शिव हो गया, मतलब कि ये जागृत सुपन तो मुक्त हो गया। जीव सीव सौ सुख पायो, सौ के सुख स्वरूप हो गया। सुख पाया नहीं, जागृत ते सुपन दे विच ये सुख उपलब्ध करने वाले साधन पालता। कोई ऐसा साधन दिओ जिहदे नाल मैनूं सुख उपलब्ध होवे। ते संत लोग कहंदे कि सौं करके किसी साधन की लोड़ नहीं। सुभावक सुख आउंदे ने, दुख जांदे ने, अध्यस्त हो जाते इस हालात में। ते जेड़ा जीव भाव कहंदा सी ये खाना चाहिए, ये छड्डना चाहिए, ये लियाउणा चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, इत्थे जाना चाहिए, इत्थे जाना नहीं चाहिए। ये ओदी हरेक दी सुपने तो गां लंघ के निंद्रा दे विच सारी कल्पना खत्म हो जाती है। क्यों? उथे ज्ञान ने केवल उथे चिदात्म है, जेड़ा अविद्या विशिष्ट हो करके सब दुखों का अभाव है, पर फिर भी अविद्या विशिष्ट हो करके प्रागनावा जीव ओदे ना तो लिया नहीं अजे।
ज्ञानी दे जागृत काल में ऐसी हालात होनी तां ज्ञानी है। ते नहीं तो नानक जी महाराज ने कहा चंगा नाम रखाए के जस कीरत जग ले। तरा लो चंगा ना ही तराओ, फिर ज्ञानी जी तराओ जो नहीं। सुरती शास्त्र कहती है ज्ञानी है जेड़ा बाणी ने इनू रद्द किया है। बाणी भी कहती है ज्ञानी जिन्ना चिर बैठा है ते अज्ञानी बैठा दो बने हैं। ज्ञानी दा दूजा पक्ष अज्ञानी है। असी सारे जे वेदांत सोए अध्याय करते असी ज्ञानी है। ते जेड़े बाजार भरे जाते ये अज्ञानी है। ते जिन्हां ने एक दिन भी वेदांत नहीं पढ़िया, जिन्हां ने कोई उपनिषद का सोए अध्याय नहीं किया, जिन्हां ने गुरु ग्रंथ का एक अक्षर भी नहीं सुनिया, जिन्हां ने गीता का कोई अध्याय नहीं सुनिया, तो इतिहास ले करके बाइबल कुरान का कोई शब्द नहीं सुनिया, ते ये तो उन्हां नूं भी है कि मैं ज्ञानी है, ये सारे अज्ञानी है। ते जेड़े ये ज्ञान पाके ये बोलते है कि ये सारे ही लोग अज्ञानी हैं ते असी ज्ञानी हैं, ये तो फिर जेड़े कदे गुरुद्वारे नहीं गए, कदे मंदिर मसीत नहीं गए, कदे किसी स्थान ते नहीं गए, ये तो उन्हां दी बुद्धि भी यही आदि है। फिर थोनू की लाभ होया इन्हां स्थानां ते जाण दा? दो ही तुसी रखी बैठे हैं, मैं ज्ञानी है जी, दुनिया दे लोग अज्ञानी है। ते जिन्हां ने कदे गुरुद्वारे पैर नहीं रखिया, कदे किसी मंदिर मसीत नहीं पैर रखिया, ते यही हो आदे भी असी ज्ञानी है जी, तुसी ज्ञानी। तो फिर थोड़ा इन्हां स्थानां ते जाण दा ते उन्हां लोगां दा जेड़े इन्हां स्थानां ते कदे भी नहीं गए, तो फर्क बताओ की है। तो गुरुआं नूं पता सी इस गल दा। नानक जी महाराज दी बाणी जेड़े भी संत दा एक लफाज उहदे च दर्ज है वो सब गुरु है। उन्हां गुरुआं ने इस जेड़ी चीज दा ज्ञानी ज्ञानी कह के ज्ञान नहीं गा, ये अपमान है। लोग बोलते है तो गुरुआं ने इन्हां दा खंडन करता। गुरु जी कहंदे कि ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेसी, ए जग सगलो धंधा। ये तो धंधा है यार, तुसी बड़ा उच्चा मरातबा लई बैठे हैं, जेड़े संत लोग कहंदे धंधा है। ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेसी, ए जग सगलो धंधा। कहूं कबीर एक राम नाम बिन, ए जग माया अंधा। भी बाणी तो ऐ आदि है घरे ज्ञानी बनिया नो, तो फिर ज्ञानी केड़ा होया? एक महात्मा किसी गल अज तो कोई साडे दाढ़ी मुछ भी नहीं फुट्टी सी, उदों सुणाउंदा हुंदा, आखे बंदा बनदा ठोकरां खा के जी, मल बणीदा मल्लां नूं ढा के जी, ज्ञानी खाईदा ज्ञान नूं खा के जी, ज्ञान नूं अज्ञान नूं खा के जी। वो ज्ञानी है जिहड़ा अज्ञान नूं खा गया। किथे अज्ञान? ते जेड़ा कहंदा मेरे दूर दूर अज्ञान रहिंदा है, ते ऐस खोपड़ी तो लेके पैर तक ज्ञान रहिंदा है, वो भी भलेखे च बैठा।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਤੋ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰੀ। हे प्रभु तेरी ये सार भी नहीं जानते की है तू। ये गल है, ये चंगे नाओ ना रखाओ, ना चंगे च कोई फायदा नहीं। वो चीज नू जानो जो गुरु जी कह गए है, जो संत लोग कहते हैं, उस वस्तु नू पछाणिया कि नहीं। तो इथों यही लगता है संत लोगों ने ये कहा, पहला चरण कि अलफ, जिवें साडी पंजाबी भाषा, पंजाबी चो फिर एक विशेष भाषा गुरमुखी, ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾ। ਤੇ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫ ਬੇਟੇ ਆਦਿ। ਜੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਊੜਾ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਓ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਲ ਮੇ ਓ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਲ ਮੇ ਆ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਫਰਕ ਹੈ। जितने सिख पंथ दे विद्वान है अथवा अनजान है, ये जो बाणी पढ़ते हैं ये ऊड़े तो शुरू करते हैं। क्यों करते हैं कि मूल में लिखत च ऊड़ा आउंदा है। तो ये बोलते हैं एक ओंकार, जिवें ये बोलते हैं इन्हां दा बोलना तो ठीक है, समझना ठीक नहीं। भी किवें बोलना इसलिए ठीक है, ये ऊड़े नूं कल्ले नूं पछाणदे आ। ये नहीं पता इहदे ऊड़े दे विच तीन जिहड़ियां लकीरां दसियां, दो लकीरां एक मां दी है ते एक आ दी है। ये तिन्ना लकीरां नूं ऐ पा के गोल चक्कर कढ़ता तो इहदा नां धर लिया ऊड़ा। ते ऊड़ा ही कल्ला रख लिया। ये नहीं सोचना चाहिए। ये ऊड़ा जिहड़ा इहदे नाल मां मात्रा भी इहदी विच ही है ते आ मात्रा भी है। ते ऊड़ा की है कि ऊड़ा एक पुलाड़ है। जिवें इस पुलाड़ दे विच पंजे भूत है ते इस शरीर दे विच भी पंजे भूत है। तो संस्कृत भाषा जिहड़ी हिंदी है ये आ तो शुरू करदे है, ये पंजाबी ओ तो शुरू करदी है। पर जेड़े संत ज्ञानी पुरुष मानता प्रतिष्ठा प्राप्त पिंडरां वाले ये बोलन लगे ऊड़े तो आदे, विचार करन लगे आड़े तो आदे। पिंडरां वाले बहुत सूझवान जिउंदे जागदे है। पहले संत तो शरीर नहीं रहे, वो वेख लैण विचार के और साडे नाल विचार करके वेख लैण। असी उन्होंने ये कहांगे भी बोलते ओ है ते विचार आ तो करते है। हुण विचार आ तो किवें करदे? वो कहंदे आकार मकार, आकार मकार, आकार ओकार मकार, तिन्ने आकार ओकार मकार फन अर्ध बिंदु पहचान, चारों के समुदाय को ओमकार जान। ये जेड़ी मन्नी परमन्नी संस्था है ये वो बोलती है कि आकार ओकार मकार। तो पहला कौन सी मात्रा आई आ गई कि नहीं? 2 नंबर ते ओ आई ते 3 नंबर ते मां मात्रा आई।
ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਜਮਾਂ ਜੋੜਦਾ ਨਾ ਓਮਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਥਾਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਾਂਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ, ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਬਿਰਤੀ ਰਤਨਾਵਲੀ, ਪੰਚਦਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਥੂਲ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਥੂਲ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਆਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ आकार के आकार में कौन सा मात्र लगता है? आकार। संतां पिंडरां वाले ने की किया कि आकार, दूजी ओ, तीजी मां, ते तिन्नां दा जोड़ के बन गया ओम। विचारन लगे तो इवें ही विचारते हैं, ते बोलन लगे है जेड़े पहलों विचालड़ी मात्रा बोलते हैं। दूजी अवस्था ओ मात्रा जेड़ी है ये सुपंदे प्रपंच दा अथवा हिरणगर्भ दा प्रतिपादन करती है। आ मात्रा विराट दा प्रतिपादन करती है। ते तुसी इस शब्द नूं छोड़ दो, अपने विज्ञान ते आ जाओ। ते मूल में जागृत काल में थोनू पहला की दीदा है? हुण सुपना दीदा है कि जागृत दीदी है? ते जे जागृत दीदी है तो की प्रपंच आकार वाला दीदा कि थोनू उकार वाला दीदा? तो थोनू भी मनना पऊगा, सूझवाना नू भी मनना पऊगा, अजाणा नू भी मनना पऊगा भी ये गल ठीक है जी। असी जागृत काल में बैठे हैं तो जागृत काल में सानू जो शक्ल वाली वस्तु मालूम पड़ती है, मक्खी दा मच्छर दा शरीर बिल्कुल छोटा है, ये भी आकार मालूम पड़ते। गऊ भैंस तो ऊंट खोते हाथी तक चले जाओ, और वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगा, शाही पेन इत्यादि कागज पत्रा, लकड़ी फट्टी, जो कुछ बुआ बारी, ये जेड़ा कुछ थोनों मालूम पड़ता है ये सारा आकार है कि नहीं आकार? तो जेड़ा आकार है इसनों कौन बोलूगा? जदों मैं आकार कहना तुसी आकार कहो तो कौन सी मात्रा अक्षर दी लगी? आकार कहने से आ लग्या कि नहीं पहला? ते जागृत काल में आकार दे दर्शन है तो आकार दा प्रतिपादन करने वाली आ मात्रा है। ते जेड़े दी प्रतिपाद्य वस्तु है ये मच्छर को लेके ब्रह्मा विष्णु लोक परलोक आते है करके कोट कोट ब्रह्मांड है, ये सारे आ नापे गए सारे। जान दी लोड़ नहीं, इस मात्रा ने सब कुछ नापता सतूल प्रपंच नूं। ते असीं ये गल नहीं कह सकते कि भी ओ पहला ऊड़ा ऊड़े चों निकलदे, ऊड़ा तो अंकर है। जेड़ा मकार मात्रा जी दा बोध करदी है ये बीज है, ओकार जी दी मात्रा बोध करदी ये अंकर है, और आकार मात्रा जी दा बोध करदी है ये फलिया फुलिया बिरछ है।
ਬਿਰਛ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਦੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਹੈ। जैसे इस जगत की रूप रेखा ग्रंथां ने गुरबाणी ने गुरबाणी दे विच एक भी ऐसा सिद्धांत नहींगा कि जिहड़ा गलत होवे। ते फिर गलत कौन है जिहड़े जानदे ने वो है गलत। बिरछां हेठां दृष्टांत दिता। बिरछां हेठां जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे। तो उत्थे ही आ गया जान बिरछ दे हेठ नाना प्रकार दे पंछी इकट्ठे होए। एक यार कोयल बोलदी बड़ी सोहनी लगदी, मोर बोलदा बड़ा सोहना लगदा, ते कां बोलदा थानू भैड़ा लगदा। मारो डला डा दिओ तां विधि निषेध हो गया कि नहीं, चंगा माड़ा हो गया। कि बिरछां हेठां जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे। औद अदोत भई उठ चले ज्यों ज्यों औद विहाणियां। ये संसार नूं एक बिरछ दा जगत देता। बिरछ वो हुंदा जिहदे रूप किहड़े ये निम है, ये टाली है, ये तोत है, ये सफेदा है, ये अंब है, ये आड़ूदा है। सब दी शक्ल न्यारी न्यारी है। ये दरख्त है ते इन्हां नूं बिरछ कहिंदे है। ते ये गां है, ये मझ है, ये कूकर है, ये सूकर है, ये गर्दब है, ये आदमी है। इन्हां दीयां शक्लां भी सब न्यारियां न्यारियां। तां फिर इहनूं कौन बोधन करेगा? ये आकार है तो इसनूं आ मात्रा बोधन करेगी। ते जागरत दे विच मूले आ ते जागरत जे असीं ओ लाइए तो सानूं ये पता होना चाहिए कि ओ मात्रा सुपन दे प्रतिपादक है। हिरणगर्भ की सृष्टि का ते लोक दा प्रतिपादन करती है। तो हिरणगर्भ का स्वरूप है जिहड़ा वो प्रतिपाद्य वस्तु है। कि आ जाएगा हिरणगर्भ की है कि हिरणगर्भ ये है कि जिवें बीज फट के ते बीज दे विचों औंकर निकलिया होया। इहदे विचों चार खाने दे जगत दा औंकर रूप होकर के रह रहा है। उसनूं सुपन अवस्था कहा गया ते उसका नाम हिरणगर्भ है। इस तो अगे जिसनूं ईश्वर बोलदे माया मात्रा वो बीज अवस्था है। उस बीज दे विच जिवें विचे बोड़ पत्ते टाणे टाणियां निम टाली सब दा आकार ते ओकार दोनों रूप ओंकर ते रूप जिहदे विच छुपिया होया है उसनूं मात्रा बोलदी है। ये बीज अवस्था है। बीज दे अवस्था दे विच किहड़ी है बीज अवस्था? जिवें तुहाडी जागरत ते सुपन बीज अवस्था दे निंद्रा दे विच बीज रूप होगी। इस तरह समुष्टि दुनिया दी जागरत ते सुपन दा प्रपंच मात्रा दे विच बीज रूप हो करके समा जांदा है। जिवें बीज तुहाडी एक जीव च है ते बिरछ तुसीं चक्की फिरदे। आ चर्ज है कि आ बीज है जिहड़ा ये बीज निम दी बटोली है। ये बीज है जिहड़ा ये तो यार एक गिटक है। ओ गिटक नहीं साईं लोका, ये गिटक नहीं, इहदे विच पूरी निम है। तां निम है हाँ, इनू विधि पूर्वक पौंकर कर। ये चो पहला पौंकर निकलेगा, दो शाखा निकलनगियां, एक तीजी शाखा पहला निकलेंगी, ओनू उपान किया ते उपर जान वाले नू अपान किया। अपान माना हैगा विकास, उपान माना हैगा हिरास।
ਇਹ ਦੋ ਅੰਕਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਗਿੜਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿੰਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਨਿੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਟੋਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਟੋਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਓਂਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਿਰਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਬਿਰਛ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਨਿੰਦਰਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਿਰਾਟ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਇਹ ਹਿਰਨ ਗਰਭ ਦੇ ਉਦਰ ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿਰਨ ਗਰਭ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਦਰ ਮੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਦਰ ਮੇ ਸਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਤੇ ਨਿੰਦਰਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਘਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਜੇ, ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਉਠਾ ਲਜੇ, ਤੂੰ ਨਿੰਦਰਾ ਗੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਖਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਲਿਜਾਣ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਰ ਜਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਹਲਾਸ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਆ ਵਧ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਲੁੱਟ ਲੈ